Today, I'll just share my screen and I'll brief you about what we'll learn today. Okay. Give me a second. Let's wait for 1 or 2 minutes more for other joining because there is limited students in this class, only 4 students, 4 or 5, I think. Let's wait for them. Jen, can you please drop the message in the group? Yeah, sure. Is my screen visible? Yes, sir. Students, is my screen visible? Okay. So we'll be learning about today's website analysis. I'll just brief you what is website analysis for SEO and we'll start with it कि उसको कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है और कौन सी वेबसाइट पे हम अपनी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं. Okay. So what is website analysis? It is SEO is the process of evaluating a website performance to improve its search engine ranking and user experience. It involves examining key elements like site mobile friendliness, keyword usage, backlink profile, and technical SEO. Factors such as meta tags, URL structures. So these are the all factors. By conducting a thorough analysis, business can identify issues like broken links, duplicate content, or poor site architecture that may hinder their visibility on search engines like Google. Tools like Google Analytics, Google Search Console, and third-party platforms help in tracking website performance and making data-driven improvements. Ultimately, website analysis ensures that the site is optimized for search engine and provides a seamless experience for users, leading to higher traffic and better conversion. So this is what website analysis. We'll just go through that कि हम कौन सी वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं. Okay. Ma'am, Just this is reshare my on page screen. SEO, right? Website analysis. Yes, it comes under the on there. Okay, so we are done with Yes, off-page SEO. या उसमें अभी We are not yet done with the off-page SEO. काफी अभी बाकी है उसमें भी. We are नहीं, just अब उसमें और कुछ बाकी है continue. ऑफ-पेज SEO में. Yes, अभी काफी activities बाकी है. I just take out the list from that what we have done that till now. Then उसमें से कितना left हुआ है. I'll just go through that once after this class. Okay. Okay. Yeah. Now I'll just share my screen. Yeah, is my screen visible? Right. So website analysis के लिए which website we'll choose is SEOsitecheckup.com.
what we have to do is we just have to copy our website URL and paste it here so that it will give you all the brief or all the details about your website कि कौन कौन से errors हैं which needs to be rectified and what are the warnings, SEO scores क्या है, पास चेक्स और फेल चेक्स, कहाँ कहाँ पे एरर्स है, डाउनलोडेड फाइल, अगर साइन अप करने के बाद यू बी एबल टू डाउनलोड दैट फाइल, अदरवाइज आप इसको पी करके सेव करके आप कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो सो दैट यू कैन चेक इट लेटर कि कौन कौन से एरर है. इट शोज द SEO स्कोर ऑफ sudaksha.com which is 100 out of 62. So this website receive an SEO score of 62 out of 100, which is below the average. The minimum average score, it should be 75. So we have some errors which needs to be rectified. There are 22 important issues that needs to be fixed to improve our website ranking on search engines and enhance its overall performance. So we check what are the errors, issues to fix. यहाँ पे कौन कौन से issues हैं जो आपको fix करने हैं. You can just go through all of that. हाई वाले कौन से हैं आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं. If you just click onto this link, it will just redirect to that particular error. Okay. So just click you one by one. Issues to fix. Okay. Common SEO issues क्या है? First हमारा क्या होता है? हमारा होता है meta title and meta description. So we need to just add that in our website. Here you can see meta title test में क्या है? हमारा यहाँ पे येलो शो रहा है. It means कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है. यहाँ पे लेंथ जो हमारी मेटा टाइटल की है इट्स 9 कैरेक्टर्स विच शुड बी द अंडर 50 to 60 कैरेक्टर्स ऑफ योर मेटा टाइटल. आपको मेटा टाइटल ऐड करना है. लेट्स कम टू द मेटा डिस्क्रिप्शन. इसमें विजिबल ही नहीं है और हमने ऐड भी नहीं करा, तो वी विल बी एडिंग दैट पर्टिकुलर मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल्स एंड मेक श्योर टू ऐड योर कीवर्ड्स. अब जब आप मेटा टाइटल क्रिएट करोगे, लेट्स search it on- search Suraksha. Here you can see the meta description over here. तो यहाँ पे visible है. So that's the specializes in delivering cutting edge psychometric test designed to cater to your specific needs. Our platform offers a full spectrum of online. यहाँ पे आगे जितना characters visible आप Google में होगा उतना यहाँ पे आपको ऐड करना है. It means under the 150 to 160 characters of your meta description. तो meta title में आपको यहाँ पे शो हो गया. यहाँ पे ओनली सुदर्शा दिख रहा है. अगर मैं जैसे मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट यहाँ पे, इज माय वॉइस ऑडिबल? Is my voice audible or not? Can you please confirm? Yes, ma'am. Then can you please confirm Ma'am, your voice is breaking. if my voice is audible or not? Is it properly audible or not? I'll just continue. Let me know if my voice is audible or not. So once I search for the psychometric test, here you can see the website psychometrictest.org. It have given the meta title which is try hundreds plus of free practice psychometric test online. This is the meta title.
of their website, and this is the meta description of that particular website, where it written 1000 plus of up to date questions. And so this is your meta description, जहाँ पे where you can add your keyword also. Okay? So it's missing in our website. So we need to fix that. You can just write meta title and description, and you can just give it to your developer. They will add it to your website. Okay. Then comes to the social media tags, meta tags. तो यहाँ पे visible ही नहीं है. It means जैसे अगर मैं sudaksha.com पे गई, just check it. Open one of the tabs. I have opened the Facebook one, but it's not added. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. So we need to add links in that particular website. अगर Facebook का हमने link डाला है तो वहाँ पे का हमें ऐड करना है. यहाँ पे आइकन हमने डाल रखे हैं, तो ट्विटर, लिंक्डइन और इन सब का भी हमें ऐड करना है. Jonal, you joined with the two different IDs. तो सोशल मीडिया टैग्स आपको क्रिएट करके जो भी वेबसाइट के यूआरएल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के, वो आपको अपने डेवलपर को देने हैं. दे विल ऐड इट टू दैट पर्टिकुलर टैग्स. Then keyword usage list. So in this, what are the most common keywords which we have used in our website? It will show us that जैसे टेस्ट है, असेसमेंट है, साइकोमेट्रिक है. हेडिंग्स में शो कर रहा है कि हमने हेडिंग में सिर्फ यूज करा है दीज कीवर्ड्स को, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करा है. तो हमें ये सारी चीजें ऐड करके एज एन आर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में वो हमें अपने वेबसाइट पे ऐड करना है. देन कीवर्ड क्लाउड टेस्ट, जो हमारे पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं वो कितने बारी हमारी वेबसाइट पे यूज हुआ है, इट शोज हियर. देन कॉम्पिटिटर डोमेन टेस्ट. Once you purchase this website subscription, it will shows all the competitors which you have. उनके बैकलिंक प्रोफाइल शो करेगा और कॉम्पिटिटर्स क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगी. देन heading tags, what are the heading tags and how many it's used in the website, it will shows like that. So H1 tag हमारा, हम what we can use is, give me a second. H1 tag, it should be used only once at your website, and H2 tags up to 10. It has like H1, H2, H3, H4, H5, H6. So main heading हमारा क्या है, which is all in one platform comprehensive assessment. This is our H1 tag, and these are all the services और aptitude test और जो भी बाकी सब pages हैं, it comes under the H2 tags. Services, efficient recruitment. So these are all the tests. H2 tag, it should be up to 10 times, not more than that in your website. उसके बाद H3, H4, you can go for that if you have that particular in your website or the services which you are providing. Okay. And second, which is robot.txt test. So you have open any random. Ma'am, your voice is not audible. Let me switch to the different network. Shivam, can you please stop doing that in my screen?
Is it audible now? I think it's audible. Wait a second, I'll just switch to the next one. Then is it audible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, sure. So I was saying about that, the robot.txt file, how you will check it in your website. Let's check that. Robots.txt to check your robot.txt file manually in your website. In this website, it's not visible or they have not added that. Okay. I'll check it on another website. Let's check it in this. देखा स्टूडेंट ओपन करो उस पे लगा हुआ है। So this is our robot.txt file. It's the disallow file which you have not to show your Google boards. जो आपके terms के pages हैं, bank privacy. So these are the pages which we have in our website, and we don't want our Google boards to crawl these pages. So that's why we disallow this from Google boards. Then second is the sitemap test. तो अपने वेबसाइट पे sitemap है या नहीं है, आप जैसे robot.txt फाइल आपने चेक करा, साइट में भी आप वैसे ही चेक कर सकते हो। This is our sitemap.xml file, which includes all the URLs of your particular website, so that your Google bot can come and crawl that particular file and all the in the website URLs or all the sub pages of your website. It will comes under the sitemap.xml file. As sitemap.xml file, they have two. Like first is sitemap.xml, which is for the Google bots, and sitemap.html file, those are for the users. जैसे कभी आप किसी वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पे अलग से साइट मैप का ऑप्शन आता है. लेट्स सी इफ इट्स विजिबल और नॉट. We'll just open another website, which is I'll say कि जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है हमारी, they also have their sitemap.xml, sorry, HTML file. One है. So here you can see so these are all the as I was saying about the HTML file, sitemap.html. तो यहाँ पे काफी सारे पेजेस बने हुए हैं. ठीक है, अगर आप इन सब पे क्लिक करते हो, you can easily go to that particular web page. If I'll just open it, so you can directly go to that website. So it's easy for users to look for them. So robo.txt file, sitemap.xml and HTML, these are all the things which you have to check it in your website. And let's come to the broken link test. Broken link, it will show like कि अगर आपका कोई सब पेज है या पेज का या सर्विसेज का पेज है जो आपका काम नहीं कर रहा है, so it will show some errors into that. It's like 404 error or
301 or 302. So these are the errors it will shows. Just a second, I'll just check if there is any. So once I open the like any web page, जैसे prive.com मैंने open करा तो उसके आगे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया. So यहाँ पे एक error दिखा रहा है which is 404. That means that particular services which you are looking for, it's not visible or available on your server or that particular website. ब्रोकन लिंक आप ऐसे चेक कर सकते हो, या आप कोई भी पर्टिकुलर जितने भी आपकी सर्विसेज हैं, या यू कैन गो टू द वन बाय वन सर्विसेज एंड यू कैन चेक कि वो सर्विस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट में मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, इसमें विजिबल है, मतलब ऑल सारी डिटेल्स आपकी इंक्लूडेड हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे क्या है देखो, मैंने क्या करा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लिक करा तो इट रिडायरेक्ट टू द होम पेज. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्विस का पेज, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे रिडायरेक्शन का वो लगा दिया, वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया. जैसे मैंने दूसरा अभी ऑनलाइन एग्जाम खोला तो यहाँ पे ये प्रॉपर्ली विजिबल है और वो पेज आपका ओपन हो रहा है. इट मीन्स कि वो ठीक है. अगर जो यहाँ पे पेज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐड नहीं है, वी कैन ऐड अदर डिटेल्स. उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल automatically open that particular page of roles and responsibility. Then SEO friendly URL test. How you will check it? I'll just open one of our blog. Let's go to the blog. जैसे पर्टिकुलरली अब रिसेंटली कोई ब्लॉग हमने डाला हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जैसे जो हमारा टाइटल है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है इन आर blog URL, which is building bridges, not barriers, SPMCBD for stronger relationship. अगर यहाँ पे डैश की जगह कुछ और मैं नंबर ऐड करूँ या कुछ भी ऐड करूँ तो इट विल नॉट ओपन इट, और ये आपके SEO फ्रेंडली URLs में काउंट नहीं होता है. नॉट काउंट एज इन योर SEO फ्रेंडली URL. SEO फ्रेंडली URL आप कैसे चेक करोगे, आप उसमें इंक्लूड आपका क्या होगा, सिर्फ डैश होगा. It should not be included any number or special characters. So you just make sure जितने भी आपकी वेबसाइट पे URLs हैं, it should be included in the dash, not the any other special characters. जैसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हैश है. तो ये सारी आपको चीजें ध्यान में रखनी है. And let's come to the image alt text. जो आपकी वेबसाइट पे इमेजेस हैं उसमें जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो, लेट्स से हमने ये इमेज यूज करा है तो इसका ऑल टैग क्या है वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. ऑल टैग आपका क्या होगा, जो इमेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है. Is my screen visible? Have not given exactly the information, but they have mentioned the competency test will Can you please mute yourself? having 3 sections. Who's this? Jaya? Yes, ma'am. No, I said Jaya, not Jaya. So I was telling about the image alt text. Image alt text क्या होगा, जो आप पर्टिकुलरली कोई भी इमेज आप यूज कर रहे हो वेबसाइट पे
उसका टैग क्या है, वो पर्टिकुलरली इमेज किसके बारे में है, व्हाट इट शोज दैट पर्टिकुलर इमेज, तो वो आपका इमेज और टेक्स्ट होगा, ठीक है। मेक श्योर टू check all the images which you are using in your website, and it should be in the web page format, not the other format. Hmm. Responsive image test like includes कि कौन से इमेज का, जैसे आप यूज कर रहे हो वेब पेज यूज कर रहे हो, या जो आपकी इमेजेस है लार्जर फाइल है तो उसको आप डिक्रीज करोगे. Not all images in this web page are properly sized. This web page is serving images that are larger than needed for the size for the user viewport. तो यहाँ से जो भी एरर्स है, लाइक ये रिस्पॉन्सिव इमेज टेस्ट का एरर है, तो सी रिजल्ट आप यहाँ पे कर सकते हो कौन से पर्टिकुलर इमेज है जो यहाँ पे आपका एरर दिखा रहा है, हाउ टू फिक्स इट. जस्ट क्लिक ऑन टू दैट और यहाँ पे वो दिखा देगा कि इशू को कैसे फिक्स करना है. दिस issue can be fixed by using responsive images, which is relies on creating multiple version of each image that are served as via CSS media queries depending on the user viewport dimensions. तो यहाँ पे इसने सोल्यूशन भी दिया. अनदर सोल्यूशन कैन बी यूज वेक्टर बेस्ड इमेजेस व्हिच इज लाइक एसवीजी images and other images which you can use for your solution. Then image aspect ratio comes like कि जैसे अगर मैं ये इमेज ओपन करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है. लाइक यू कैन सी यहाँ पे रेंडर साइज इंस्टेंट कौन से साइज का हम इमेज यूज कर रहे हैं, इट ऑल्सो मैटर्स. लाइक 1280 into 720 pixels we have used this. Yeah. Each thing you have to check it in your website while doing anything, in adding any details. Responsive image में जो particular size है you will use that, not more larger than that. Okay. Image aspect ratio. Okay. Inline CSS test. ठीक है. This web page is using inline CSS styles. So let's see what is it and how we can fix it. Inline CSS में क्या होता है? Is it a good practice to move all the inline CSS roles into external file in order to make your page lighter in weight and decrease the code to text ratio? तो जो भी हमने CSS फाइल, जो हमारी हैवी फाइल है जो हमने अपनी वेबसाइट पे यूज करी हुई है, उसको हमें डिक्रीज करना है, ताकि अगर कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है, किसी भी सर्विसेज के पेज को खोलता है, तो उसको लोड होने में जितना ज्यादा टाइम लेगा वो कस्टमर वहां से छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे मूव ऑन कर जाएगा. तो हमें इतना लाइक जो हमारी वेबसाइट का ओपन टाइम है, इट्स कम टू लाइक 0.2 to 3 सेकेंड्स के अंदर में आपकी वेबसाइट या कोई भी सर्विसेज के पेजेस हैं ओपन होनी चाहिए, सो दैट कि आपका यूजर उसी पेज पे रहे और दूसरी वेबसाइट पे मूव ना हो. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी. जो भी ये एरर्स हैं यू जस्ट write down those errors, and you will give it to your developer to fix all the errors. Okay. Deprecated HTML tag test. ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्या एरर है. यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा, जैसे ये check if your web page is using old depreciated HTML tags. These tags will eventually lose browser support and your web pages may render incorrectly as browser drops support for these tags. तो ऐसे टैग्स भी यूज नहीं करने हैं जो गूगल सपोर्ट ना करे. गूगल एनालिटिक टेस्ट. तो आप यहाँ से चेक करोगे कि आपकी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का टैग्स डला है कि नहीं डला है. तो हाउ यू विल चेक इट, कंट्रोल यू सोर्स कोड पे जाके आप चेक कर सकते हो कि गूगल एनालिटिक्स का टैग डला है कि नहीं डला है.
Give me a minute. Actually, there is an issue. Give me a second. So how you will check it is just type the G tag in your search bar and you can check जो आपका गूगल टैग मैनेजर है, गूगल एनालिटिक्स का टैग है, वो आपकी वेबसाइट पे है कि नहीं है. Here you can see Google tag or Google Tag Manager. It's visible in our website. So we have added that particular tag in our website. So the Google Analytics में क्या होता है, अब सारी जो भी आपकी डिटेल्स हैं एज एन वेबसाइट की, I'll just show you क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या क्या विजिबल होता है इसमें. इसमें वॉइस ऑडिबल राइट. Yes, ma'am. Open your Google Analytics. ठीक है, बैक जाओ वेबसाइट पे, वेबसाइट है. व्यू सोर्स. जी ये जो लेफ्ट साइड में जो है लाइन ड्रैग का ऑप्शन, उसको चेक करो. लेफ्ट साइड में, हाँ, सबसे ऊपर में है लाइन ड्रैग. सर्च करो इसमें UA हाइफन. नहीं आया. ओके, बैक जाओ. लाइन आप हटा दें तो तो जो इसका जो एनालिटिक्स का टैग है, वो टैग लगा हुआ है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू. ठीक है, एनालिटिक्स को हम अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं वेबसाइट पे. गूगल टैग के थ्रू भी हम लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये गूगल टैग के थ्रू लगा हुआ है इसके ऊपर. चलो PPT पे जाओ, नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेविकॉन टेस्ट. फेविकॉन क्या है, जो आपकी वेबसाइट पे जो आइकन्स आते हैं आपके लोगों के. ठीक है, ये आपका फेविकॉन है. बैकलिंक्स टेस्ट, कितनी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है आपकी वेबसाइट के ऊपर. अभी ये पेड वर्जन में नहीं है, तो फ्री में हमें कुछ अभी दिखा नहीं रहा है. फ्री वर्जन में हम इसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, ऊपर करो. GS एरर टेस्ट. ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल जो एरर फाइल्स है आपकी वेबसाइट पे. ठीक है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीडिंग जो है वो काफी हाई हो जाती है, टाइम लेती है. वैसे फाइल्स को ये रिमूव करने के लिए बोलता है. ओके, कंसोल टेस्ट भी आपका यही होता है. जब आप वेबसाइट को डेवलप करते हो, आपकी वेबसाइट जो है कंसोल पे किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो परफॉर्म बता रहा है. कुछ वार्निंग्स है इसके अंदर. नीचे करो, थोड़ा ऊपर करो. ठीक है, चार्ज डिक्लेरेशन टेस्ट. इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को यूज करते हैं, एक तरीके से बेसिकली मेटा टैग होता है ये. ठीक है, आपकी वेबसाइट किस ब्राउजर पे, सॉरी, ब्राउजर हो गया आपका, या फिर आप मोबाइल, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट में आपकी वेबसाइट जो है पूरी प्रॉपर ओपन हो, इसलिए इस टैग को यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में. ओके, नीचे सोशल मीडिया टेस्ट. सोशल मीडिया टेस्ट में आप यूज करते हो OG टैग्स का, जो ओपन क्राफ्ट टैग होते हैं. ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपको. जब आपकी URL सब अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर करते हो, तो एक प्रीव्यू इमेज और एक टाइटल डिस्क्रिप्शन वो फैच कर लेता है. ठीक है, वो नॉर्मल पोस्ट नहीं होती, वो आपकी क्लिकेबल पोस्ट होती है. ओके, यूजर जब उस पोस्ट को देखेगा, क्लिक करेगा, तो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके ब्लॉग या आर्टिकल वाले पेज के ऊपर. ठीक है, इसलिए यूज करते हैं हम सोशल मीडिया टेस्ट का. नीचे, अब यहाँ पे है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, क्या क्या चीजें जो आपकी वेबसाइट को स्पीड में और भी बेटर कर सकती है, वो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का हमें यूज करना है अपनी वेबसाइट की स्पीड, लोडिंग टाइम जो है इसको फिक्स करने के लिए. ठीक है, जैसे HTML टेस्ट है. HTML की कोई हैवी फाइल आपने यूज करी हुई है, उनको आप रिड्यूस करें. अननेसेसरी फाइल्स जो हैं HTML की, उसको आप डिलीट कर दें, रिमूव कर दें. ठीक है, या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर लें.
ठीक है। डोम साइज टेस्ट यानी कि अगर आप वेबसाइट पे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स यूज किया हुआ है, लाइक कम क्या करते हैं काफी, और अपने कुछ पोर्टफोलियोज हैं वो लगा देते हैं, कोई पीडीएफ है उसको लगा देते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वो कितने केबी की है, उसका साइजेस क्या है, उसको आपको फिक्स करना है। HTML कंपेरिजन, ठीक है। जेजिप फाइल होती है एक, जेजिप एक फंक्शन होता है जब आपको अपनी वेबसाइट के कुछ भी मतलब फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होती है अगर आप कोई CMS का यूज करते हो, जैसे वर्डप्रेस का यूज कर रहे हो या मैजेंटो का यूज कर रहे हो, ड्रुपल का यूज कर रहे हो। ये सब क्या है, हमारी वेबसाइट की वो CMS होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली कस्टमाइजेबल होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोडिंग वर्क ज्यादा नहीं होता, तो वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी आपकी जो भी मतलब फाइल्स है उसको जीजिप कर दो उसको। ठीक है। स्पीड लोडिंग टेस्ट अभी हमारे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है ये प्रॉपर ठीक है, बेटर है। ठीक है, 3.77 सेकेंड। बट जो नॉर्मल स्पीड होती है वो आपकी 2.5 सेकेंड में आपकी वेबसाइट की स्पीडिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट है JS एग्जीक्यूशन टाइम टेस्ट। ठीक है, JS फाइल हमारी ठीक है, 2 सेकेंड में वो लोड हो जा रही है। ठीक है, पेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ये सारी जो फाइल्स हमने यूज करी हैं वेबसाइट डेवलप होते टाइम, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, इमेज, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ये भी मैटर करता है आपका फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी वेबसाइट में। ठीक है, सो इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बता रहा है इसको फिक्स करना है। और बगल में आपका साइजेस भी दिखा रहा है कि कितने MB में कौन सी फाइल है। ठीक है, तो ये MB में नहीं होनी चाहिए, इनको KB में हमको लेकर के आना है, यानी कि इसको रिड्यूस करना है जो भी फाइल्स है। स्क्रॉल करो। सीधा स्क्रॉल करो इसको। ठीक है, सो बेसिकली ये सारी क्या है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको हम टेक्निकल एसईओ बोलते हैं, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। इन पे क्या होता है कि मोस्टली वर्क ये हमारा नहीं होता है, इनको डेवलपर से फिक्स करवाना होता है। ठीक है, एज ए डिजिटल मार्केटर आपको सिर्फ इन चीजों से अवेयर होना है, आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें हमारी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली नहीं बना रही है, ये एसईओ फ्रेंडली होने में मतलब कमियां हैं, इनको फिक्स करना है। तो ये इसकी जो भी कमियां हैं इनको फिक्स कौन करेगा, आपका जो वेबसाइट डेवलपर है। ठीक है, ये हमें अपने ऊपर एज ए डिजिटल मार्केटर अपने ऊपर ये टास्क नहीं लेना है कि हमें ही खुद से इसको फिक्स करना है, सारी टेक्निकल चीजें हैं ये। नीचे करो। CDN टेस्ट। CDN होता है आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, जब आप होस्टिंग या कोई सर्वर परचेज करते हो तो CDN आपको एक फीचर में इंक्लूड होता है ये। ठीक है, ये आपका जो कंटेंट है वो डिलीवर करता है यूजर को, यानी यूजर जो है, मान लीजिए आप इंडिया में बैठ करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो और आपका जो ट्रैफिक है वो USA से आ रहा है, तो USA का जो यूजर है, USA में जो बैठा है अमेरिका में, वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसको काफी टाइम लग रहा है एक्सेस करने में। ठीक है, सो CDN आपका हेल्प करता है कि जितने टाइम में आपकी वेबसाइट इंडिया में ओपन हो रही है उतने ही टाइम में आपकी वेबसाइट अमेरिका में भी ओपन हो जाए। ठीक है, सो ये CDN टेस्ट जो है, जब भी हम होस्टिंग या सर्वर परचेज करते हैं तो CDN मस्ट होता है, इसको आप अच्छे से चेक करके तभी लें। जो इमेज कैचिंग टेस्ट, जब भी आप कोई इमेज ब्राउजर पे देखते हो या आपकी वेबसाइट की इमेज यूजर को ब्राउजर पे दिखती है, तो एक कैचिंग एक्टिविटी होती है कि जो, मान लीजिए मैं यूजर हूँ, मैं किसी इमेज को विजिट करता हूँ क्रोम पे जा करके, तो उस इमेज की कैचिंग जो है मेरे ब्राउजर की कुकीज को कैच कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे रिलेटेड कोई चीज सर्च करूंगा तो वो इमेज मुझे बार बार कहीं ना कहीं शो करेगी। ठीक है, अगर मैं डिस्कवर करता हूँ गूगल पे जाकर के कोई चीज, तो वहां पे मुझे वो इमेज दिख सकती है। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में यूज करता हूँ, वहां पे मुझे वो इमेजेस दिख सकती है, तो ये कैचिंग होती है। इमेज की कैचिंग को आप अनेबल करके रखें, वेबसाइट की कैचिंग को भी अनेबल करके रखें। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका टाइमिंग होता है, जब फर्स्ट टाइम मैं किसी वेबसाइट पे विजिट किया तो मुझे वेबसाइट जो है लोड होने में 10 सेकंड का टाइम लिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा मैं उस वेबसाइट पे विजिट करूंगा तो वो 2 सेकंड या 3 सेकंड ही लेगा, बिकॉज कि उसने क्या किया, उसकी वेबसाइट ने मेरे ब्राउजर की कुकीज को कैच कर लिया। ठीक है,
सो ये सारी वही चीजें हैं, जावास्क्रिप्ट कैचिंग, सीएसएस कैचिंग, आपकी वेबसाइट की जो भी फाइल्स है उसको कैच कर लेता है कुकीज। नीचे आओ। रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स टेस्ट। ठीक है, ये भी होता है कि आपका जब वेबसाइट जो है जब लोड होती है, ठीक है, तो कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट के कंटेंट को डिस्प्ले करने में कुछ डिले करती हैं। तो रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स का हमें यूज करना है ताकि जो हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर, मतलब जो फाइल्स हैं वो कंटेंट को डिलीवर होने में डिले ना करे। स्क्रॉल करो। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, तो हल्का सा देखो, नीचे 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 नीचे। ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेन, ठीक है, ये आपका कोर वेब वाइटल्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए। ठीक है, फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेन आपकी वेबसाइट पे जो भी आपने सीएसएस जावा यूज करी हुई है उसकी वजह से जो आपकी वेबसाइट की टाइमिंग है वो डिले होती है, मतलब हाई हो जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन, कोई आपने इमेजेस वगैरह कोई यूज करी है, हैवी वीडियोस वगैरह आपने यूज किए हैं वेबसाइट पे, उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है। अब करो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, जैसे मोस्टली होता है कि हम किसी न्यूज की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं, उसी बीच कोई इमेज कंटेंट के बीच में आ जाती है, और जहाँ पे हम रीड कर रहे होते हैं कंटेंट को, वो कंटेंट ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस के लिए वो काफी बेकार होती है। तो वो चीजें ना हो, आपका जो कंटेंट है वो ऊपर या नीचे, लेफ्ट राइट कहीं पे भी शिफ्ट ना हो। यूआरएल कैनोनिकल टेस्ट। ठीक है, आप यहाँ यहाँ पे दो वेबसाइट देख रहे हो, दो यूआरएल देख रहे हो, एक https सेमीकोलन स्लैश स्लैश sudaksha.com, सेकंड है www.sudaksha.com। ठीक है, ये मेरे लिए दो, एक वेबसाइट है, लेकिन गूगल बोट के लिए ये दो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो दोनों को वो क्रॉल ना कर ले, अगर दोनों को उसने क्रॉल किया, इंडेक्स किया, तो ये डुप्लीकेट समझेगा इसको। ठीक है, तो जिस यूआरएल को मुझे इंडेक्स कराने की जरूरत है, मैं उस यूआरएल को अपने कैनोनिकल टैग में इंक्लूड कर दूंगा। स्टूडेंट की वेबसाइट ओपन करो, व्यू सोर्स में हो। ठीक है, आप नाइन्थ नंबर पे जो है कैनोनिकल यूआरएल, इसके नीचे जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है कैनोनिकल टैग, यानी कि www.student.com को इंडेक्स करवाना है। तो ये यहाँ से हम गूगल के बोर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा यूआरएल मेरा इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, और दोनों जो पेजेस हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, तो ये इंडिकेशन हम देते हैं गूगल बोर्ड को कैनोनिकल टैग के थ्रू। एसएसएल चेकर। जब भी आप डोमेन परचेज करते हो तो आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है हैकिंग जैसी एक्टिविटी से। आपकी वेबसाइट हैक ना हो, या फिर किसी यूजर को आपकी वेबसाइट विजिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एसएसएल सर्टिफिकेट जरूरी होता है हमारी वेबसाइट के लिए। जब तक अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, हमारा जो यूआरएल होता है http सेमीकोलन स्लैश स्लैश xyz.com, इस तरीके से होता है। ठीक है, एसएसएल लेने के बाद आपका जो यूआरएल है वो https हो जाता है सेमीकोलन स्लैश स्लैश xyz.com। ठीक है, सर कर करो। एक क्वेश्चन था, जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो कि आपका दो साइड दिए ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के लिए बोलिए मैम को। स्क्रॉल करो। हाँ कैनोनिकल टैग में जो आप दिए हैं, वहाँ पे हम्म, दो जो, ये दो वेबसाइट तो एक ही है ना? हाँ, ये दोनों वेबसाइट एक ही है, ये मेरे लिए। ठीक है, ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि ये एक ही वेबसाइट है, लेकिन गूगल का बोट इसको दो समझता है। ठीक है, ये अलग अलग समझेगा उसको। वो मेरा कैसे यूआरएल को सर? रीड करेगा, यूआरएल को रीड करेगा, यूआरएल अगर चेंज हो गया तो वो समझेगा कि ये दो वेबसाइट है, लेकिन इस पे जो आपने कंटेंट यूज किया हुआ है सेम कंटेंट है। तो वो डुप्लीकेसी का आपको कुछ वो सिक्योरिटी इश्यूज दे सकता है। ठीक है, सर्च कंसोल पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है जब कभी ऐसा होता है तो। अच्छा, तो ये वाला आपने क्या लिंक में दे के रखे है क्या, एक्स्ट्रा पेज का लिंक ऐसा कुछ? कौन सा हाँ, सेक्शन दोनों यूज हुआ है?
इसको हमें क्या करना है, ये जब हम वेबसाइट को करते हैं ना, बिल्ड करते हैं, जब आप डोमेन परचेज करते हो तो इस तरीके की आपकी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, ये तो अभी आपको दो दिख रहा है। हम्म, अब इसमें आपका एक यूआरएल होता है http //sudaksha.com। ठीक है, ये हो गया तीसरा यूआरएल। एक आपका यूआरएल हो जाएगा https://www.sudaksha.com। ये चौथा यूआरएल हो गया आपका। तो इस तरीके से काफी सारे यूआरएल बन जाते हैं। ठीक है, और इसको क्या करता है गूगल जो है, वो अलग अलग यूआरएल रीड करता है, एक नहीं समझता है वो। तो हमें इसको बताना पड़ता है कि ये एक ही यूआरएल है। वो कैसे बताते हैं हम, कैनोनिकल टैग का यूज करके। जो कैनोनिकल टैग में यूज किया है सर आपने, तो वो हाँ तो स्ट्रू इंटर्न का दिया है, स्ट्रू वैली का। हाँ, स्ट्रू वैली का वो वाला फास्ट है, और सेकंड वाला ये वाला इन दोनों में से किसी एक यूआरएल को आपको चूज करना है। मेन किसको रखना है, वही बात है। मेन आप इसमें www डॉट वाले को भी ले सकते हो, विदाउट www को भी ले सकते हो, किसी एक को ही आपको चूज करना होता है। अच्छा। जरूरी नहीं कि आप कोई एक पर्टिकुलर आप रखो, आपकी मर्जी, आप डिपेंड करता है, किसी भी एक यूआरएल को आप पिक कर सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। पर सर मोस्ट ऑफ हम देखते हैं डब्ल्यू वाले ही देखते हैं यूआरएल तो। अगर आप ओपन होएगा वो रीडायरेक्ट हो जाता है, जब आप www.sudaksha.com एंटर करोगे तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके नॉन www वाले पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट ओपन होनी बंद हो जाएगी, दोनों वेबसाइट ओपन होंगी, लेकिन ये रीडायरेक्शन लग जाएगा इसके ऊपर एक। ठीक है, ठीक, कहाँ पे थे? नेक्स्ट है आपका एच टी एच सॉरी एच सी टी सी एच एस टी एस, आपका सीक्रेट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। जब आपका ये HTTP का कोई इशू होता है तो ये आपका इस तरीके का सिक्योरिटी इश्यूज आपके, ये जो भी मतलब इश्यूज होते हैं, ये आपको सर्च कंसोल पे इंडिकेट होते हैं। एक बार सीधा सर्च कंसोल ओपन करना कोई सा। स्क्रॉल करो, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, मैनुअल एक्शन। कि अगर किसी भी तरीके की गूगल आपको पेनल्टी लगाता है या फिर वो आपको इंडिकेट करता है कि आपकी वेबसाइट पे जो है कुछ गलत चीज यूज हो रही है, वो उसका नोटिफिकेशन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलता है, सर्च कंसोल के। ठीक है, तो इस तरह का HTTPS से रिलेटेड ऊपर में जो है HTTPS पे करो, क्लिक करो। या कोई भी अगर इशू आती है आपकी वेबसाइट पे HTTPS से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है, जीरो इशूज यहाँ पे बता रहा है। और इनकेस कोई भी इशू होते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। बैक जाओ, सर्वर सिग्नेचर टेस्ट, कि जिस भी सर्वर पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई है उसका सिग्नेचर इशूज भी इसमें कुछ बता रहा है। द सर्वर सिग्नेचर इज ऑन पेज। सॉरी, सर्वर सिग्नेचर को ये टर्न ऑफ करने के लिए बोल रहा है, यानी कि हमारी वेबसाइट किस सर्वर पे होस्ट है, ये कोई थर्ड पार्टी इजिली एक्सेस कर सकता है उस चीज का। ठीक है, जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मतलब ये पता लगा सकता हूँ कि sudaksha.com जो है वो किस सर्वर पे होस्ट है। ठीक है, इसको ऑफ करने के लिए बोल रहा है। स्क्रॉल करो। ठीक है, बाकी आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल पे किस तरीके से व्यू कर रही है, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, एडवांस SEO में आपका स्ट्रक्चर डाटा टेस्ट,
जिसमें आप यूज करते हो स्कीमा टैग्स को अपने। आई होप स्कीमा टैग्स के बारे में पता होगा आप लोगों को। सर्च करना सीधा कुछ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल। और नेक्स्ट पेज पे जाओ। सर्च करो सीखता है कीवर्ड और डिजिटल मार्केटिंग इंटरप्रेटर। उसमें जो सर स्टार रेटिंग वगैरह आ जाती है वेबसाइट की, हाँ, सेकंड नंबर पे है आपका स्टार्स आ रहे हैं, वोट्स आ रहे हैं। ठीक है, स्कीमा टैग के थ्रू ही आते हैं। नीचे जो आपको जॉब्स दिख रही हैं ये भी आपका स्कीमा टैग के थ्रू ही आता है। मतलब हम क्या समझते हैं कई बार कि ये गूगल जो है हमें जॉब शो कर रहा है, गूगल की तरफ से हमें जॉब्स का सजेशन। तो ये जॉब्स के जो भी आपको अलग अलग कंपनीज के जॉब्स यहाँ पे शो हो रही है, ये भी आपके गूगल स्ट्रक्चर डाटा से ही आता है, जो स्कीमा टैग होता है इसमें। ठीक है, नीचे करो। ये स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, पीपल आल्सो आस्क। ये एफएक्यूज भी आपके जो आते हैं वो स्कीमा टैग से ही आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि यूजर्स के कुछ और भी जो डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक तरह से आपका जो आपकी वेबसाइट की क्या बोलते हैं, ट्रस्ट को बिल्ड करता है। ऑप्शंस अपनी पीपीटी पे। हाँ, ओपन करो। कस्टम 404 एरर टेस्ट। कोई भी आपकी वेबसाइट पे कोई यूआरएल है जो एरर शो हो रहा है 404, उसको फिक्स करें या फिर रिमूव करें। स्क्रॉल डाउन करें। एसपीएफ सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो भी आपके वेबसाइट का फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड ये कोई इश्यूज दे रहा है। एड्स.txt वैलिडेशन, जब आप गूगल एडसेंस का यूज करते हो तो आपको एड्स.txt वैलिडेशन लेना पड़ता है। एडसेंस जब यूज करते हैं तब जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है किसी सर्विस वेबसाइट के लिए। स्क्रॉल। ठीक है, सो ये आपकी जो एनालिसिस रिपोर्ट है कुछ नीचे आपको बता रहा है इश्यूज टू फिक्स, जिसको आपको इमीडिएटली फिक्स करने की जरूरत है, हाई प्रायोरिटी वाले। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको फिक्स करने की जरूरत है। ओके, सो अब आपको क्या करना है कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं sudaksha.com, विद्यापूर्ण, रिज्यूमोशन और भी वेबसाइट हैं जो आपको टास्क में मिल जाएंगी, उन सबको एनालिसिस करना है। जो भी कमियां हैं वेबसाइट के अंदर एक रिपोर्ट बना करके आपको शेयर करनी है। ठीक है, रिपोर्ट का सैंपल जो है वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। सर एक चीज पूछनी थी। जी। सर वो जो HTML साइट में जो बता रही थी मैम, तो हम्म। उसमें ये नहीं समझ में आया कि वो HTML साइट में कैसे, मतलब कि हम लोग जैसे XML साइट में उसमें सर्च कंसोल में जाके करते हैं सबमिट, और ये वाला कैसे करते हैं HTML साइट में, कैसे क्या होता है इस पे सर? ये बेसिकली जो HTML साइट मैप होता है आपका वो होता है यूजर के लिए। XML होता है वो आपका होता है बोट्स के लिए। ठीक है, हम्म यूजर के लिए हम यूज हम्म, करते हैं HTML। जब आप साइट मैप को जनरेट करोगे किसी भी टूल्स के थ्रू, तो वहां पे हम्म, आपको एक टैग मिलता है, उस टैग को आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो वो साइट मैप आपका जो है वहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है। जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, जनरेट अच्छा, तो हो ये जाएगा। हाँ बोलिए। तो ये आप एक्सएमएल साइट मैप के बारे में बता रहे हैं हाँ ठीक है, जो हमारा XML साइट मैप होता है वो तो हम अपलोड करते हैं अपने सी पैनल से जा करके। ना? हम्म। ठीक है, और जो आपका HTML फाइल होता है, ये मान लीजिए आपको हेडर या फूटर में कहीं पे भी आपको डिप्लॉय करना है, तो वो आप क्या करोगे, एक वहां से आपको कोड मिलता है, उस कोड को आपने वहां पे जा करके लगा देना है अपनी वेब हेडर या फूटर में। ठीक है, वो आपका साइट में HTML लग जाएगा। अच्छा, तो वो पूरी जिस तरह से डिटेल्ड आती है हर पेज की, तो वो हाँ एक से वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, वहां पे दिखने जी लगेगी। जी। और एक छोटी सी चीज और थी, जैसे रोबोडॉक्स TXT जो है, आप मैम ने बताया था कि उसमें एक ही पेज, जैसे हमको गूगल को क्रॉल नहीं करवाना है, तो ये एक्चुअली ये रोबोडॉक TXT हेडर में लगता है कि कहाँ पे लगता है, किसी पेज के, मतलब कि उस पेज के हेडर में जाके लगाना पड़ेगा मुझे? हेडर फूटर में कहीं नहीं लगाना है आपको, आपने ये फाइल होती है जो हम TXT, जो हमारी फाइल होती है नोटपैड, वो हमारी हम्म। TXT फाइल होती है। ठीक है, उस अच्छा। हाँ। नोटपैड में आपको ये जो रोबो डॉट टीएक्सटी वाली जो चीजें हैं, अलाउ करना डिसअलाउ करना किस यूआरएल को, वो आपने हम्म। सेव करना है अपने नोटपैड फाइल में। हम्म। ठीक है, फिर ओके। उस फाइल ओके को क्या सर। करना है, सी पैनल से जा करके फाइल मैनेजर में जाओगे। अब फाइल मैनेजर में आपका पब्लिक अंडरस्कोर HTML एक फाइल होगी, उसमें हम्म। आपने सिर्फ अपलोड कर देनी है उसको। ठीक है, अच्छा। वो आपका रोबो डॉट टीएक्सटी लग जाएगा आपकी वेबसाइट पे। अच्छा, थोड़ा इसमें सर थोड़ा कम समझ में है मुझे। ये आप क्या बोलते PHP में करने की बात बता रहे हैं कि जो CMS प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें? कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा करके। अभी तो टाइम हो रहा है मेरी नेक्स्ट क्लास का। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? आप ये सर मुझे ये याद जो दिला देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली इसको बता दूंगा। 404 की एरर कभी कभी आती है जब वेबसाइट ओपन करते हो और नहीं होती है, तो हम्म। उसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये है कि आपका जो वो पेज है वो आपके सर्वर पे कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है, वहां से पिक नहीं कर पा रहा उस पेज को। या तो उस यूआरएल को आप फाइंड करें कि कहाँ पे है वो यूआरएल, कहाँ पे अटैच है, कहाँ पे लिंक कर रखा है आपने, उसको आप रिमूव कर दें या फिर उसको फिक्स कर दें। कई बार होता है कि हमने जैसे कि यूआरएल का जो यूआरएल में जो भी हमने कंटेंट यूज किया हुआ है, कंटेंट यानी जो भी टेक्स्ट हम यूज करते हैं यूआरएल में, कई बार मिस स्पेलिंग हो जाती है, उस वजह से भी एरर आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपका सर्वर का भी इशू होता है, इस वजह से आपका 404 एरर दिखा देता है।